very, very warm welcome on Supercracks YouTube channel. So finally, I am Sidmore releases the BMS admission policy for year 2026. Very crucial session. मैं request करूंगा हर student से कि end तक बने रहना because we're going to talk about a lot of aspects in this particular session. We're going to talk about how has been the IMBMS Sidmore's BMS program. We'll be talking about the admission process, composite score calculation. क्या आप eligible भी हो कि नहीं इस particular program के लिए? Some other relative aspects that whether you should join this particular program or not, किस particular rank पे इसको रखना चाहिए if you're selecting this particular program, weightage of different criteria as well will be in the selection in the final selection process also we are going to cover. So stick till the end and yeah, subscribe Supercracks YouTube channel as well. Okay, let's talk about the IM Sidmore's BMS program. So this particular program was launched last year, and it's going to give you broad management-based foundation. So you would find whatever IIM Indore currently is teaching in the initial phase of BBA, they are also going to provide the same kind of structure in their BMS program. So they are going to teach you core management basics with exposure to statistics, mathematics, economics, psychology, sustainability, and public policy as well. In fact, they also have had the foundation for international exchange programs and industry internship also in the sixth semester. But yes, suddenly they'll have some minimum CGP attached to it. Plus, live capstone project is one more USP feature of this particular program that usually you would find कि आपको MBA वाले program में मिलता है वैसे. MBA progression का soft commitment भी है. So many of you may be thinking कि ये BBA program है, but नहीं, ऐसा नहीं है. आपको एक सॉफ्ट कमिटमेंट मिलता है IIM Sidmore के अंदर इफ यू आर गेटिंग CGP of 8 which is yes difficult task in fourth year, so total 4th year completion के बाद आपका 8 CGP आता है तो आपको बिना कैट लिखे सीधा एंट्री टिकट मिल जाएगा MBA में जाने का. सो सॉफ्ट कमिटमेंट टू IPM है, नॉट द कंप्लीट कमिटमेंट. दिस इज द BMS प्रोग्राम ऑफ IIM Sidmore. इसके बाद बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की. So you are not supposed to write any other entrance exam. IPM इंदौर का एग्जाम लिखोगे ही तो ये एक एडिशनल कॉलेज होगा, एक अच्छा बैकअप ऑप्शन बन सकता है क्योंकि एक IIM है और स्टेज 2 इंटरव्यू है और इसके लिए अलग से फॉर्म आपको भरना पड़ेगा. सो IPM इंदौर का फॉर्म भरने के साथ साथ आपको IIM Sidmore का फॉर्म भी भरना पड़ेगा. प्लीज मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ, राइट. इसके बाद अब आप ये समझिएगा कैसे फाइनल सिलेक्शन करते हैं ये स्टूडेंट्स का. सो IPMAT एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर IIM इंदौर का 50% वेटेज रखता है जिसमें 25% वेटेज दे आर गिविंग टू MCQ सेक्शन, 25% वेटेज दे आर गिविंग टू QASA सेक्शन एंड 50% वेटेज दे आर गिविंग टू वर्बल एबिलिटी सेक्शन. ठीक है. इसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है IIM Sidmore जो कि ऑनलाइन इंटरव्यू परफॉर्मेंस में ऑनलाइन इंटरव्यू रहता है. इसका 30% वेटेज आपको मिलता है इन द फाइनल सिलेक्शन राउंड. Academic performance को they are giving 25% weightage, class 10th को 10 out of this 25% and 15% to class 12th marks. और इसका भी उन्होंने क्लियर बाइफर्केशन दिया हुआ है जो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. जेंडर डाइवर्सिटी में अगर आप फीमेल चाइल्ड हो या फिर आप ट्रांसजेंडर हो तो 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे. मेल चाइल्ड का कैलकुलेशन 95 से होगा, नॉट फ्रॉम 100. ये चीज ध्यान रखिएगा इन द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस. सो दिस इज एन एडेड एडवांटेज टू गर्ल स्टूडेंट्स ओवर हियर. ठीक है. अब बात करते हैं अपन एकेडमिक परफॉर्मेंस की कि किसे इवैल्यूएट करता है. सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम इफ यू आर गेटिंग 60% के बिलो का स्कोर. ये बिल्कुल क्लियर करा है उन्होंने. यू आर इनएलिजिबल फॉर द प्रोग्राम. ठीक है. अगर आपके 80% मार्क्स भी है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे दोनों 10th एंड 12th में. 80 to 90 के बीच कुछ है. ठीक है. सो दिस इज बिलो 80%. 80 to 90 के बीच में कुछ है तो 5 and 8. सो क्योंकि 15% है उसमें से 8, ये 10 में से 5. 90 to 95% के बीच में है तो आपको 8 मिलेंगे. ठीक है. और 90 to 95 के बीच में है तो यहां पे आपको 10 मिलेंगे. 95% के ऊपर स्कोर किया 10th में तो 10 मार्क्स एंड 15 मार्क्स पूरे के पूरे अगर आप क्लास 12th में इतना स्कोर कर ले रहे हो 95% मार्क्स के ऊपर इन द फाइनल सिलेक्शन राउंड. जैसे मैंने बताया कि कितना परसेंट वेटेज मिलेगा एकेडमिक परफॉर्मेंस में 25, तो 25 में से कितना मिल जाएगा फाइनल सिलेक्शन में देख सकते हो. सो ये स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स इन सिलेक्शन प्रोसेस के और ये स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स कहीं ना कहीं एक अच्छे पीयर को जनरेट करते हैं और जो ये स्टूडेंट्स हैं ये फाइनली जितने स्टूडेंट्स बनेंगे पीयर बनेगा एक अच्छे IIM में पढ़ने के लिए सही रहेंगे, राइट. अब एज एलिजिबिलिटी भी देखिए आप. 20 इयर्स का एज एज ऑन 1st of August 2026 है या उससे कम है तो ही आप एडमिशन ले सकते हैं. ज्यादा एज वाले स्टूडेंट्स को नहीं एडमिशन देता IIM Sidmore
बशर्ते आप SC ST PWD कैटेगरी के हो, तो 5 years का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप SC ST या फिर PWD कैटेगरी के स्टूडेंट हो, बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 August 2001, वहां पर आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये एज एलिजिबिलिटी हो गई। अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की। अगर आप NC-OBC की हो तो 27% रिजर्वेशन है, SC के 15%, ST का 7.5%, EWS अप टू 10%, PWD 5%। ये चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के थ्रू ही आई है, एंड उसी के बेसिस पे IIM सिरमौर भी एडमिशन देता है स्टूडेंट्स को। करंट इनटेक 120 सीट्स का है इनसाइड IIM सिरमौर फॉर द BMS प्रोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन वेरिफिकेशन की। आपको मार्कशीट, सर्टिफिकेट सब सबमिट करने पड़ेंगे, तभी एडमिशन होगा। फाइनल डेडलाइन रहेगी 30 October 2026, उसके बाद एडमिशन नहीं हो पाएगा। ओके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, क्योंकि तब तक आप अगर 12th अपियरिंग भी हो, सो इनफैक्ट काफी सारे 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स IBMET के इंदौर का एग्जाम लिखते हैं, तो वो उनकी भी रिजल्ट आ जाएगी, उनको भी फाइनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, इसलिए लेट दिया जाता है। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड, फेलियर टू मीट एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी एडमिशन कैंसिल करा सकता है। सो दिस वाज अबाउट द एडमिशन पॉलिसी दैट हैज बीन रिलीज्ड। अब बात करते हैं कि वेदर यू शुड कंसीडर दिस पर्टिकुलर IIM और नॉट। सी, IIMs are progressive in nature, so they can become a very good option. So IIM सिरमौर की जो स्टैंडिंग आज है वर्सेस जो 5 साल बाद होगी और आने वाले 7 8 10 साल बाद होगी, वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। क्योंकि IIM इंदौर जब खुला था तब बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको कंसीडर नहीं कर रहे थे। यस, इट्स अ बेबी IIM, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग IIM नहीं है, बट एक बैकअप ऑप्शन में आप रख सकते हो। कुछ कॉन्स भी हैं इस पर्टिकुलर IIM के, जैसे सबसे पहला कॉन मुझे लगता है कि फीस बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा है। सो इट्स चार्जिंग यू समवेयर अराउंड 24 लाख रुपीज फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। लेकिन BMS के बाद प्लेसमेंट कमिटमेंट नहीं दे रहा। मुझे ये सबसे पहला कॉन लगता है कि अपन अगर इतना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं in this particular program, then certainly you should be giving some placement commitments after completion of 4 years। और मान लो वहां पर आपका CGPA 8 नहीं बैठता, तो फिर आप IPM के लिए भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो फिर वहां पर भी आपका एडमिशन नहीं होगा, यू विल स्ट्रगल ओवर देयर। सेकेंड कॉन मुझे यहाँ पर IIM सिरमौर का यहाँ पर ये लगता है कि एक परेशानी IIM सिरमौर के साथ ये वाली है कि 6 साल का IPM करवा रहा है। आफ्टर 4 years, इफ यू गेट 8 CGPA, आपको MBA में एंट्री मिलती है, राइट? और फिर आपको 2 साल और लगेंगे। मतलब किसी और स्टूडेंट ने अगर IPM किया होता तो वो 5 साल में कंप्लीट कर लेगा, आप 6 साल में करोगे, तो 1 साल ज्यादा पढ़ रहे हो यहाँ पर। तो ये मुझे एक और प्रॉब्लम दिखती है। फीस के मामले में भी वो अमाउंट ज्यादा हो जाएगा आपका, क्योंकि 1 साल की ज्यादा फीस दोगे और रहोगे भी 1 साल ज्यादा। तो ये दो बड़े कॉन्स हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। बाकी इट्स अ गुड कॉलेज टू गो फॉर एज अ बैकअप ऑप्शन। सो आई वुड टेल यू, अगर आप मेरी राह माने तो सबसे पहले आप IIMs को रखें, IFT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट को रखे, NMIMS मुंबई जैसे इंस्टीट्यूट को रखे फॉर द IPM प्रोग्राम। देन जितने स्ट्रॉन्ग BBA ऑप्शंस हैं उनको आप रख सकते हो फॉर द फ्लैगशिप्स सेंटर ओनली। जैसे फॉर एग्जांपल क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कैंपस में आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसको आप तवज्जो ज्यादा दें IIM सिरमौर से। या NMIMS मुंबई में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल में फॉर BBA प्रोग्राम, यू कैन गिव मोर ऑप्शन टू दैट ओवर एंड अबव IIM सिरमौर बिकॉज ऑफ दीज टू कॉन्स। ठीक है, और उसके बाद आप रख सकते हैं IIM सिरमौर को एज अ बैकअप ऑप्शन। दिस इज माय सजेशन। बाकी अगर आप इससे तवज्जो नहीं रखते हैं, if you think that you have different opinion, please put the same thing in the comment section. For more content like this, keep coming regularly on Supercrats YouTube channel. And if you like us and love us on YouTube channel, you will love us more on Instagram and Telegram also. Subscribe and follow over there as well. I am Rahul Vaswani. Will be coming up with something fruitful in days to come. Thank you. Thanks a lot.